हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कैटलिस्ट मास्टर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना आगे का टॉपिक दैट इज़ आइसोमॉर्फिज्म कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, हमने डिटेल में देखा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारा एक पॉइंट था जहाँ पे हमने आके स्टॉप करी थी लास्ट वीडियो, वो था आइसोमॉर्फिज्म। ओके, एक बार मैं आपको 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर रिकॉल दे देता हूँ कि आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या था। देखो, आयोनिक बॉन्ड का मतलब था सिंपल सा आयन, कि आयन्स बन रहे हैं अगर बॉन्ड के टूटने पे, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड। इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, देखो एक कंपाउंड हमेशा रहेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक कंपाउंड हमेशा रहेगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपाउंड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस समय हम बोलते हैं कि हमारा जो कंपाउंड बना वो कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड। यू गेट इट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर 2 एटम्स, लाइक सपोज वी आर हैविंग सोडियम एंड क्लोरीन, then sodium must be electropositive and chlorine must be electronegative. We already know that why sodium is electropositive and why chlorine is electronegative, so we are not going to discuss about its electronegativity. Okay, sodium generally donates electron, sodium when donate electron, it carry one positive charge, and this electron then taken by chlorine and it converted into chlorine negative ion. That means this particular Na plus is carbocation, not carbocation, it is cationic form, and chlorine is anionic form. ठीक है, then there is formation between Na plus and Cl negative, then the compound form is NaCl and this compound is ionic compound. We already know this. ठीक है, sodium positive ion is sodium and chlorine negative ion is also in gaseous form, and that NaCl should be in solid form. Now let's discuss about what is isomorphism. See, isomorphism consists of 2 words. First one is iso and another one is morph. Morph means structure, or you can say geometry. Okay, geometry of compound or structure of compound, and iso means same. That means 2 different compounds which is having similar electronic configuration of anions and cations are considered as isomorphic compound. For example, if we have sodium fluoride and magnesium fluoride, then what is sodium fluoride and magnesium fluoride going to do? Let's first of all identify the electronic configuration or number of electrons in them. Sodium when formed, it exists in Na plus ion and F is in negative ion, so it contains 10 electron, and fluoride also contains 10 electron, while magnesium generally contains here also 10 electrons, and one or single fluoride ion also contains 10 number of electrons. So they are having similar electronic configuration of cations and anions. That's why sodium fluoride and magnesium fluoride are isomorphic compounds. You get it? Okay, so let's see what is isomorphism. Same number of electrons and same electronic configuration, and they have similar structure. Ionic compound of same geometry are called isomorph. Similar electronic configuration of their cations and anions. NaF, MgF2, Na plus, F negative, Na positive contains 10 electron, F negative also contain 10 electron, Mg plus 2 also contain 10 electrons. So Na plus, Mg2 plus, F negative, they generally contains 10 number of electrons. That's why sodium fluoride and magnesium fluoride is considered as isomorphic compound. There are another certain examples which consider under the category of isomorphism, and they are like potassium chloride and calcium chloride. You can calculate the number of anions and cations in it also. Okay, now we are going to discuss about the energy change. What are we going to discuss about? Energy change during the bond formation. Let's see how they are considered or how the energy change takes place. Okay, so suppose in energy change we have a particular atom A and atom B, atom X, when they combine together they form AX, which exists in solid state.
अब इसमें क्या होगा जनरली, देखो ए जो गैसियस स्टेट में है वो वापस से कहाँ गया, ए पॉजिटिव स्टेट में गया और उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम, जैसे सपोज ये एक एटम है, इस एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेम अगर इसका उल्टा करूं मैं, जैसे कि मान लो कोई एक आउटर मोस्ट शेल में अगर कहीं से मैं लाके इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी इन द आउटर मोस्ट शेल किसी भी कंपाउंड की क्या कहलाती है, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली दो काम हो रहे हैं। ए जो है वो गैसियस स्टेट से पॉजिटिव चार्ज में जा रहा है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी यूज होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो और केस सेकंड में क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव में एक्स नेगेटिव बनेगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपके क्या बनता है, आयोनिक आयंस की फॉर्म में बनते हैं Na पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव आयन। ओके, अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है कि ये जो आपका Na प्लस बना है, मतलब कि ये जो Na प्लस बना है, ये Na प्लस आपका क्या करेगा, एक्स नेगेटिव लेगा और क्या बनाएगा आपका NaX, ये सॉलिड स्टेट में बनेगा। यहाँ पे जनरली प्रीवियस टाइम पे एक चैप्टर हुआ करता था जिसको बोलते थे द सॉलिड स्टेट। वो द सॉलिड स्टेट चैप्टर जो होता था उसके अंदर हम जनरली पढ़ते थे कि लेटाइस क्या होते हैं। लेटाइस मतलब क्या होता है, क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर या कंपाउंड जो एग्जिस्ट कर रहा है या एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये होता है लेटाइस। मतलब कि सोडियम को और एक्स नेगेटिव आयन को आपस में मिला के हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसकी एक लेटाइस बनाई। उस लेटाइस को बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी। यू गेट माय पॉइंट। 3 स्टेप हुई हैं। पहले में क्या हुआ कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जो एनर्जी वहाँ पर यूज हुई इसको क्या बोला हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्स ने जब इसके द्वारा रिलीज किया गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, उस समय पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगी। उसके बाद में थर्ड नंबर पे एक ए पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो ए एक्स बनता सॉलिड स्टेट में और उसको बोलते हैं हम लेटाइस एनर्जी। अब देखो लेटाइस एनर्जी शुड बी हाई। लेटाइस एनर्जी क्यों हाई होना चाहिए उसके पीछे रीजन समझो। लेटाइस एनर्जी अगर मैंने लो करी, समझो लेटाइस एनर्जी अगर मैंने कम कर दी तो वो लेटिस टूट जाएगा तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेटाइस एनर्जी इनकी हाई है, इसी की वजह से आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट को कैरी करते हैं, या उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऊपर के 2 केस हैं। अगर देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर ज़्यादा होगी, देखो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस आयोनाइज लेटाइस एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लेटाइस एनर्जी का सम अगर ज़्यादा है किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो ही हमारा लेटिस स्ट्रक्चर बनेगा। अदरवाइज लेटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा पर वो ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जंप करते हैं। ये चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लेटाइस एनर्जी का सम आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी एनर्जी रिलीज होगी, और जब हमारी एनर्जी रिलीज होगी तब हमारा कंपाउंड बनेगा। ये चीज़ क्लियर है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो लेटाइस एनर्जी की अगर हम बात करें कि लेटिस एनर्जी होती क्या है, ठीक है। लेटिस एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो एक साइकिल है, यहाँ पे हम सोडियम और क्लोराइड के साथ में सोडियम और क्लोराइड का केस लेके हम पढ़ चल रहे हैं, जो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम और क्लोराइड है। देखो लेटिस एनर्जी की बात करें तो जो रिलीज्ड एनर्जी है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयन, मतलब कि 1 मोल आयोनिक कंपाउंड गैसियस आयन जब बन रहा है उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को बोलेंगे हम लेटिस एनर्जी। बॉर्न-हैबर साइकिल की अगर बात करें तो देखो बॉर्न-हैबर साइकिल हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है, और इसको जनरली हम क्या करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे एक साइकिल है, उस साइकिल को समझो कि उस साइकिल का मतलब क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाऊंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। देखो सोडियम सॉलिड, देखो इसमें सिंपल सा क्या करा हमने, समझो
हमने क्या किया, जर्नली हमने सिंपल सा क्या करा, सोडियम ले लिया हमने, ठीक है, सोडियम लिया सॉलिड स्टेट में, प्लस हमने आधा मोल या हमने क्या ले लिया Cl2। ये किस में था, क्लोरीन गैस थी, हमने क्लोरीन गैस ले ली। सोडियम जब सॉलिड स्टेट में था, पहले सोडियम को सॉलिड स्टेट से मेल्ट करेंगे, हम किस में लेके जाएंगे, सोडियम गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे। फिर सोडियम गैसियस स्टेट में जब पहुंचा तो उसको हम क्या करेंगे, सोडियम प्लस आयन को हम क्या करेंगे, एनाइन बनाया, हमने कैटाइन बनाया, सोडियम गैसियस स्टेट से कैटाइन बनाया। अब क्लोरीन को हमने क्या करा, हमने किस में कन्वर्ट करा, Cl के अंदर। और जब Cl हमने एक अकेला एटम ले लिया ना Cl के अंदर से, और जब ये Cl बना तो इस Cl को हम क्या करेंगे, बाद में Cl निगेटिव के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करा, और यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो कैसा था, गैसियस स्टेट के अंदर। ये चीज़ क्लियर है। अब ये जो Na प्लस और Cl निगेटिव आपस में मिलेंगे, और यहाँ से क्या बन रहा है, NaCl, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में। यहाँ से इनका एक लैटिस बनेगा, एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको बोलेंगे Na या लेटाइस एनर्जी। उनका लैटिस बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी। और NaCl को बनाने में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा HF, मतलब कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो, किसी भी कंपाउंड को सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब कि यहाँ पे डेल्टा H सब्लिमेशन होगा। सॉलिड को हमने क्या करा, सोडियम को उठा के हमने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। और अभी मैंने आपको बताया कि जब ये कंपाउंड रहता है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे हमने सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हमने क्या कहा कि क्लोरीन है, क्लोरीन को हमने क्या कहा, क्लोरीन निगेटिव के अंदर हमने कन्वर्ट करा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होगी, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल, दो एटम आपस में जुड़े हैं, उन दोनों एटम को हम सेपरेट करेंगे। देखो, जैसे ये दो क्लोरीन के एटम, सपोज मान के चलो ये दो क्लोरीन के एटम है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, टोटल बॉन्ड एनर्जी कितनी लगी है, डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 करा, क्योंकि दो क्लोरीन के एटम है, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बाई 2 हो जाएगा। प्लस क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इस प्रोसेस में उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। और जब Na प्लस और Cl नेगेटिव बना तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उनको, उसको बोलेंगे लेटिस एनर्जी। तो डेल्टा HF की वैल्यू टोटल किसके बराबर हुई, समझो, डेल्टा HF की वैल्यू जो होगी टोटल किसके बराबर होगी। सबसे पहले जो डेल्टा H सब्लिमेशन है, सोडियम का पहले ले लें पूरा, फिर इसका लेते हैं, फिर दोनों का कंबाइन लेंगे। सोडियम में डेल्टा H जो सब्लिमेशन हुआ वो, उसके साथ में हमने क्या लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी ली सोडियम की, ठीक है, डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ किसका, सोडियम, प्लस बॉन्ड एनर्जी बाई 2 ऑफ किसका, क्लोरीन का, प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन की, प्लस साथ में जो लेटाइस एनर्जी रिलीज हुई है, इन टोटल एनर्जीज का सम होगा हमारा डेल्टा HF, ठीक है। समझ में आया पॉलीमॉर्फिज्म और आपके एनर्जी चेंज कैसे हुआ, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो हम सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं जो लेटेस्ट एनर्जी को या आपके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम फजांस रूल वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, आयोनिक एनर्जी को हम टोटल क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे को ज़रूरी है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, और कुछ लोग होंगे जिनको समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एनर्जी एक बेसिक लेवल से आपको पढ़ाना चालू करूँ, और इस तरह से पढ़ाऊँ कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझ में आए, ठीक है। स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको केमिस्ट्री की वीडियोस बना के देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।